And as per the practice, before starting the class, I will ask for a one question which you have to answer. And now this question will be depending upon the channel length modulation effect. See, this is a question for you. The channel length modulation effect occurs with the increasing drain to source voltage. Is it true or not? Yes, class, is it true or not? फटाफट से आंसर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर कंटेंट ऑफ टुडे. आज बहुत अच्छा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाला कंटेंट मुझे पढ़ाना है. आपको मजा आएगा उसे पढ़ के. सो डू आंसर वेरी क्विकली. Everyone need not to repeat the names again and again. जल्दी से कीजिए इसको. Very good to see. Jaspreet and Ramandeep, do it fast. So very good to see that yes, all the students have given the right answers. Channel length modulation effect occurs with increasing drain to source voltage. और ये कब होता है? In the saturation region when we fix the gate to source voltage and going on increasing the drain voltage. And this effect is more prominent. Okay. So I think so one more question we can take. Now this question is based on what I can say. So this is another question for you. The lambda introduce करते हैं ना एक term channel length modulation effect में. The lambda introduced due to CLM has value in the range of 0.02 to 0.05, or we can say it is very less. Yes, everybody do respond quickly, very quickly. जल्दी कीजिए बेटा. अभिषेक, ज्ञानेंद्र, जसप्रीत, अभी तक आपका नहीं आया है. Okay. Deepak, you are saying no. Then according to you, what should be the range of lambda? Deepak, if you're listening me, then kindly write down. Tell me the range of the lambda. If it is not in 0.02 to 0.05, it's not a specific, but somehow near this. So what you say? 1? No dear, you are totally wrong. मैंने आपको इतनी बार बताया था when I was telling you about the channel length modulation effect that lambda is also always having a value less than 1. तब हम neglect करते हैं ना उस term को. तभी तो हमने higher order terms को neglect किया था जब हमने वो series expansion किया था to find out the modified current equation in the saturation region. Just because the lambda is having a very less value, and this is a true one that lambda is having a value somehow in this range only. Okay. Okay, so now today I'm starting the content and today we have to look for, हम पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे device scaling. It's a very important thing. And see, device scaling के बारे में कोई कुछ जानता है? If somebody want to write something in the chat box, what do we mean by a device scaling?
Yes, anybody who knows about it? Yes, students, what do you mean by scaling? सामने दिख भी रहा है scaling क्या होता है. Abhishek Rana, why are you disagree? You don't know about scaling, that's why. Device scaling or MOSFET scaling is basically it is a miniaturization, or we can say the reduction of the dimensions and few other parameters. Okay, कोई बात नहीं अभिषेक, it's okay. So basically, when we talk of the scaling, the concept comes from the Moore's law. Moore's law का statement क्या था? In every 2 years, the transistors on the chip will get double, or in the other way, we can say that in every 2 years, the area or the chip density will be the area will get half of the chip for the same number of components. So to achieve this statement, to make this statement always true, the designers, the VLSI engineers, they work day and night and very hard to come up with this thing, that how to achieve this. Okay, and the result of this, भाई आप कैसे करोगे? अगर हमने बोला कि एरिया हाफ हो जाना चाहिए लेकिन चिप डेंसिटी वही रहनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? हम ये बोल रहे हैं कि जो साइज आज 1/1 है किसी कंपोनेंट का, तो वो 0.5/0.5 हो जाना चाहिए, तभी तो हाफ होगा ना. या अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेम एरिया पे हमारा ट्रांजिस्टर काउंट डबल हो जाना चाहिए, तो भी वही चीज है. भाई एक रूम है, एक रूम के अंदर हम अगर ये बोले कि 20% ईच ऑफ 50 kg वेट कैन वेरी इजिली स्टैंड ओवर देयर. ठीक है, समझना इस कॉन्सेप्ट को कि एक कमरे में 50 किलो के 20% बहुत इजिली खड़े हो सकते हैं. अब हमें ये चाहिए कि नहीं, हमें तो उसमें क्या करना है, 20 नहीं 40 लोग खड़े करने हैं. तो हम क्या करेंगे? हम छोटे बच्चे खड़े कर देंगे जिनका वेट कम होगा, 10-12 किलो के, 15 किलो के, जो आराम से खड़े हो जाएं. दैट इज अ वन थिंग विच वी कैन डू. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द मूर्स लॉ. और इसे ये स्केलिंग का कॉन्सेप्ट निकला कि जब तक हम स्केल डाउन नहीं करेंगे डिवाइस को, तो मूर्स लॉ को अलाइव रखना दैट इज नॉट पॉसिबल. सो बेसिकली स्केलिंग क्या है? इट इज द प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट ऑफ द डायमेंशंस of an electronic device retaining the electrical properties of the device. So basically if I am talking in the terms of the MOSFET के साइज को छोटा करना है, लेकिन उसका थ्रूपुट, उसकी फंक्शनैलिटी को बिगाड़े या डिस्टर्ब किए बगैर. ठीक है, फंक्शनैलिटी बेटर होनी चाहिए, पावर कंजम्पशन कम हो जाना चाहिए, और साइज कम हो जाना चाहिए, लेकिन जो आपका एक VI कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसे हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं मॉसफेट का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर हम इस तरीके से डिवाइस के साइज को कम कर पा रहे हैं, द वोल्टेजेस, द सप्लाई ऑन विच इट इज वर्किंग, अगर हम उसको रिड्यूस कर पाते हैं, तो इन ट्रू मीन्स देन वी हैव स्केल्ड डाउन द डिवाइस. Now is it understandable to everyone? Raise your hands and tell me. ये समझ आया आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट स्केलिंग का? Okay, very good. So now moving further. Now what is the motivation for scaling? कैसे मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ हमने स्केलिंग करनी है? तो सबसे पहली चीज आती है मोर ट्रांजिस्टर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हम ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को रखेंगे तो चिप डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है. चिप डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है? पोर्टेबल डिवाइसेस बनाना इजी हो जाता है. तभी तो आप लोग देखो, पहले क्या होता था अर्ली डेज में, मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया था, वीडियो क्लिप, जहाँ पे हमने मोबाइल का इवोल्यूशन देखा था. तो यू हैव सीन द साइज ऑफ द फर्स्ट मोबाइल फोन. इट वाज अ बिग मोबाइल फोन, और जिसका साइज एंड वेट पूरा एक अच्छी बड़ी किताब के बराबर से होता. लेकिन अब हम जो यूज कर रहे हैं, जस्ट अ स्लीक डिजाइन और फीचर्स देखो. पहले मोबाइल फोन्स क्यों आए? जस्ट टू मेक अ कॉल. We have used the mobile phones, we have designed the mobile phones, but now mobile phone means your bank is into it, your laptop it is, है ना? Then you are having a number of games, number of different features. Even after coming a good smartphones, we are not using the camera separately. It has a good quality camera also, and back camera, front camera, like there are number of things. So how is it possible? It comes out only when we will be able to give the high performance with the scaled down devices.
So this is the one motivation behind the scaling. Second, we can say the less delay time. लेस डिले टाइम मीन्स जहां हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने डिले को कम कर दिया तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा. और अदर वे वी कैन से कि जो हमारा सिस्टम है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जैसे अभी आप आजकल लैपटॉप्स देखो, आप पिछले 10 सालों में अगर आप रिव्यू करेंगे, देयर इज अ ट्रिमेंडस चेंज इन द लैपटॉप्स. कहाँ हम गीगा हर्ट्ज पे या मेगा हर्ट्ज पे वर्क कर रहे थे, नाउ वी आर ऑन द गीगा हर्ट्ज. ठीक है, देन आप स्पीड देखो सिस्टम्स की कितनी हाई हो गए, प्रोसेसर्स कितने हाई एंड बन गए हैं. व्हाई इट इज पॉसिबल, हाउ, बिकॉज we are able to scale down the devices, then only it is possible. Then third क्या आता है, less VDD, और ये क्या रिजल्ट करेगा, लेस पावर कंजम्पशन. VDD क्या हो गया, द सप्लाई वोल्टेज विच वी गिव टू द MOSFET सर्किट्स. ठीक है, ये है आपका डीसी सप्लाई. अगर आपका लो डीसी सप्लाई पे काम करेगा सर्किट, सपोज पहले क्या होता था 5 वोल्ट पे करते थे, अब हम कहाँ करते हैं नियरली 1.8 वोल्ट के आसपास. तो अगर हम एक बड़ा रफ आइडिया लें, पावर कंजम्पशन क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज इनटू सप्लाई करंट, दैट इज द पावर कंजम्पशन. तो अगर हमने सप्लाई वोल्टेज को हम पहले के कंपैरिजन में अगर हमने 1/3 या हाफ तक खींच दिया, तो बड़े रफ फिगर में आप बोल सकते हो, बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो अगर कम हो गया तो पावर भी कम हो गया. सो दीज आर द सम points which motivates the designers or the engineers to go on for the scaling. Okay, now see, this is a one concept over here. अब ये बात आती है स्केलिंग करनी कैसे है, क्या स्केल रखें, अगला जो हमारा टेक्नोलॉजी नोड आएगा वो कहाँ पे स्केल डाउन होना चाहिए. तो मोस्टली हम क्या करते हैं, 70% श्रिंकिंग इन ईच टेक्नोलॉजी नोड. अभी मैं आपको जस्ट 5 मिनट्स में ये चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ये 70% वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. ठीक है, with every generation can integrate 2 times more functions per chip. ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका चिप का फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स हैं, वो हर एक जनरेशन में, हर एक जनरेशन कब आ रही है, विद इन 2 years एज पर द मूर्स लॉ. तो इन एवरी 2 years उसके जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, दे मस्ट हैव गेट डबल. कॉस्ट डिक्रीज हो जानी चाहिए by 2 times. These are some we can say these are some parameters of the scaling. Scaling doesn't say कि आपने किसी डिवाइस को बहुत छोटे साइज में चेंज कर दिया और उसको करने के बाद क्या हुआ, आप बोलोगे क्योंकि इसमें बड़ी सारी इंजीनियरिंग लग गई तो इसकी तो भाई कॉस्ट अब बहुत ज्यादा हो जाएगी. दैट इज ऑफ नो यूज. जो चीज आज मुझे 100 रुपए में मिल रही है, अगर वो ही मुझे 2 साल के बाद 1000 रुपए में मिले, मैंने क्यों खरीदी. और आपने ये चीज हमेशा मार्केट ट्रेंड देखा होगा, जो आज चीज 1000 रुपीज में है, मैं बेसिकली आई एम टॉकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक का आज आपका 1000 रुपीज में मिल रहा है, आप अगर देखेंगे एज द टाइम पासेस, उसको लॉन्च हुए 6 महीने हो गया, कॉस्ट गिर जाती है, साल हो गया, कॉस्ट और गिर जाती है. क्यों गिरती है, क्योंकि बैकएंड पे कुछ नया टेक्नोलॉजी आने वाला है. तो जब नया आएगा तो पुराने वाले का कॉस्ट अप डाउन, नए वाले को एक नए कॉस्ट के साथ दिया जाएगा. फिर धीरे 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 टाइम के साथ साथ साल 1.5 साल में उसका कॉस्ट डाउन आएगा. और ये चीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से, इफ यू आर द वन, अगर किसी ने आईफोन्स यूज करते हो, आप देखो आईफोन के साथ ये चीज बहुत जल्दी होती है. आज कोई आईफोन लॉन्च हुआ, सपोज अभी देखो 11 आईफोन 11 लॉन्च हुआ था, तो कितना कॉस्ट था, लाख रुपए कॉस्ट है, 90,000 कॉस्ट है. अब आप देखो यू आर गेटिंग इट इन 70,000, 67,000. सो सी, ये होता है जब नाउ, क्यों ये गिरा एकदम से, कॉस्ट अचानक से तो नहीं गिरा. अब बिकॉज द कंपनी नोज कि अब मुझे अगले फ्यू मंथ्स में एक नया, एक बेटर फीचर के साथ मॉडिफिकेशन लेके आना है, एप्पल 12 को लॉन्च करना है, तो वो 12 के लिए मार्केट बनाएंगे और 11 को सस्ता करके जो भी उनका मास प्रोडक्शन हुआ है उसको जल्दी से बेचने की कोशिश करेंगे, सो दैट उनका लॉस भी नहीं हो और नई टेक्नोलॉजी के लिए मार्केट रेडी हो जाए, पुराना वाला सारा प्रोडक्ट वहां से ऑलमोस्ट हटने लगे. दिस इज व्हाट द टेंडेंसी इज. ओके, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है कि मैं अकेली गाना जैसा गाती जा रही हूँ? आ रहा है कुछ भी? ओके,
सो अब हम आते हैं, नाउ आई विल नॉट टॉक ऑफ द चैलेंजेस फर्स्ट, नाउ आई विल कम अप विद दिस थिंग। हम आपको पहले टेक्नोलॉजी नोड के बारे में कुछ समझाते हैं, फिर हम स्केलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद माय ओन व्हाइट बोर्ड। ये शेयर हुआ आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड? ओके, सो नाउ सी ओवर हियर, if I talk of the technology node, थोड़ा सा see, if I talk of the technology node, तो टेक्नोलॉजी नोड का मीनिंग क्या है सबसे पहले ये समझो आप लोग। When I talk of the MOSFET, see here is your say source region, this is the drain, and here you will be having gate, यहाँ आपका आ गया substrate. So again, time and again I have discussed that the distance between source and drain is known as a channel length, और इसे हम drawn gate length भी बोलते हैं, ठीक है। L is what? Channel length, or it is also known as a drawn gate length. Drawn gate length is the fabricated gate length. जब गेट टर्मिनल को फैब्रिकेट किया गया उस समय पे जो इसकी लेंथ थी वो। Why this is a more appropriate to say? उसका रीजन आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट के साथ देख चुके हो। Because this L is not a fixed parameter if we talk of as the distance between source and drain. ठीक है, जो आपकी चैनल लेंथ है ये वेरी हो जाती है when we come to a saturation region, so that you have already seen. तो उस कंटेक्स्ट में आज मैं बात नहीं करूंगी आपसे, ठीक है। सो नाउ सी, basically now I am giving you a new definition of this L parameter. This is known as the minimum feature size. Minimum feature size means that size, that minimum size which can be drawn or fabricated on chip, that is your L, and we connect this with the channel length. The designers say that the drawn gate length or the channel length is that minimum feature size which can be fabricated on chip, and this gives the technology node. This gives the technology node. आपने नेम्स ऐसे पढ़े होंगे, say 180 nanometer you must have seen, 130 nanometer, देन आपने सुना होगा इसके बाद आया 90 नैनोमीटर, देन वी कम टू 65 नैनोमीटर, देन 45 नैनोमीटर एंड सो ऑन। नाउ वी आर वर्किंग विद समहाउ कॉमर्शियली हम 14 नैनोमीटर तक वर्क कर रहे हैं, एंड इन रिसर्च द वर्क इज गोइंग ऑन फॉर द 6 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर एंड सो दिस इज व्हाट द सिनेरियो। नाउ सी, if I talk of this, can you tell me that why, from how or which prediction tells the designers कि 180 नैनोमीटर के बाद 130 नैनोमीटर पे ही हमें आके लाई करना है, हमें उसी के आसपास कहीं रिसर्च करके कोई नया डिवाइस देना है, और if 130 is true then 90 पे आना है, उसके बाद अगर 90 पे आ गए तो उसके बाद हमें 65 पे जाना है। और इन फिगर्स में कोई बहुत ही ऐसे राउंड अप वाला पैटर्न भी नहीं है कि इसमें ये इसका हाफ हो रहा है या 1/4 जा रहा है या 1/3 गिर रहा है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कैन एनीबडी टेल मी दैट हाउ दीज नंबर्स आर बीइंग डिसाइडेड, कि ये कहाँ से आ रहे हैं नंबर्स, कि 180 के बाद 130 टेक्नोलॉजी नोड आएगा, है ना, 130 के बाद 90 आएगा, देन 65 आएगा। एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी अबाउट दिस? 70% डिक्रीमेंट क्यों करना है? 70% डिक्रीमेंट दीपक? यस दीपक, आपने सही बोला 70% डिक्रीज हुआ, बट क्यों करना है यही 70% डिक्रीज? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ये तो अभी मैंने आपको बताया था स्लाइड में कि 70% श्रिंकिंग करते हैं हम फ्रॉम द प्रीवियस टू अ न्यू टेक्नोलॉजी नोड, बट क्यों करते हैं 70%? हम परसेंट क्यों नहीं उठा लेते, हम 60% क्यों नहीं ले लेते? ये 70% का कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आ गया? एनीबडी हु कैन टेल मी?
Yes, class. Anyone who can tell me about this? कोई नहीं है? किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता? रमन, आई थिंक सो यू मस्ट हैव आंसर्ड मी. दीपक ने आधा आंसर तो दिया. चलो. सो बेसिकली ये 70% का जो कॉन्सेप्ट है ये निकला है आपके मूर्स लॉ से. ये भी मूर्स लॉ से ही निकला है. अब देखिए कैसे निकला मूर्स लॉ से. मूर्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था? इन एवरी 24 months or approximately 2 years, चिप एरिया कितना होना चाहिए था? टू बी हाफ. ठीक है, चिप एरिया हाफ होना चाहिए. अब देखो, सपोज दिस इज एनी चिप. ये आ गई आपकी चिप. से इसका एरिया मैं 1 यूनिट बाय 1 यूनिट ले लेती हूँ, है ना. 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, तो इसका क्या एरिया हो गया? 1 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे इसको हाफ करना है. हाफ एरिया का मतलब है कहाँ लेके आना है मुझे? 0.5 पे. तो इसके साइज को मैं लेंथ और विड्थ को कैसे रिड्यूस करूं? से दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, हाउ मच आई हैव टू रिड्यूस? if I am going to reduce it by 70%, 0.7 एंड 0.7 अगर हम कर देते हैं. अब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू 0.7, दिस इज 0.49, अप्रोक्सीमेटली 0.5. हो गया ना हाफ? गॉट दिस पॉइंट? यस क्लास, अंडरस्टूड दिस थिंग कैसे हुआ? समझे सब लोग? तो ये आया बेटा मूर्स लॉ से. शिवम, शिवम इसको देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने. आपके पास एक ब्लॉक है 1 बाय 1 यूनिट का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इज 1. एज पर द मूर्स लॉ क्या करना चाहिए? 2 साल में ये जो एरिया है चिप का ये हाफ हो जाना चाहिए, यानी जो आज 1 है ये 0.5 हो जाना चाहिए. तो ये 0.5 कब होगा? जब हम इसकी लेंथ और विड्थ को 70% रिड्यूस करेंगे, 0.7 और 0.7 पे लाएंगे. तो जब हमने इसको 0.7 इंटू 0.7 किया तो अब एरिया क्या हो गया? 0.5 हो गया. तो दिस इज हाफ ओनली. एंड दिस इज व्हाट द मूर्स हैज सेड. मूर्स ने यही तो स्टेटमेंट दिया था कि हर 2 साल में चिप एरिया कम हो जाना चाहिए. अब उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें मिनिमम फीचर साइज और द चैनल लेंथ इसको इस तरीके से रिड्यूस करना है. जो पीछे है प्रीवियस नोड है या करंट नोड है, जो अगला आएगा वो उससे 70% डाउन होके आना चाहिए. ठीक है. एंड दिस मिनिमम फीचर साइज, दिस इज इन द रफ वे कैलकुलेटेड एज, एल को हम बोलते हैं लैम्डा बाय 2. लैम्डा आप पढ़ चुके हो क्या है? लैम्डा आपने अभी पढ़ा था, जो हमने आपको सीएलएम में बताया था. ठीक है. तो ये इस तरीके से एक रफ फिगर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलिंग. एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है इसके पीछे, 70% के पीछे. आप सबने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ा होगा किसी भी एम्पलीफायर का. कैसा होता है? इफ आई विल बी ड्रॉन इट ऑन द फ्रीक्वेंसी स्केल, गेन के साथ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आता है. ठीक है. ये हो जाता है मैक्सिमम गेन. ये क्या हो जाता है? मैक्सिमम गेन. एवी यहाँ पे वोल्टेज गेन है. और जब हम इसको डाउन करते हैं बाय 3 डेसिबल्स, तो यहाँ पे हम इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं. होता है ना ये एफ एल एफ एच. तो बैंडविड्थ क्या निकल आती है? एफ एच माइनस एफ एल. और ये जो हमने डाउन किया ये क्या कहलाता है? ये है हमारा एवी अपॉन रूट 2. और दिस एवी अपॉन रूट 2 को अगर मैं दूसरे वे में लिखना चाहूं तो ये हो जाता है इसके इक्वल. ठीक है. ये भी एक कॉन्सेप्ट है. अब ये कॉन्सेप्ट क्यों है?
वाई वी टेक दिस बैंडविड्थ 3 डेसिबल्स डाउन ओनली? यहाँ पे भी झोल है, हमने 4 या 5 का फिगर क्यों नहीं लिया? हम -3 डेसिबल पे बैंडविड्थ क्यों निकालते हैं? यस, एनीबडी इन द क्लास, ये कॉन्सेप्ट आपका बीटेक लेवल का है, इसको आप लोग बता सकते हो? यस, टेल मी, एनीवन हु कैन गिव दिस आंसर? यस क्लास, डोंट सिट आइडल। आप लोग के पास ऑनलाइन क्लास कर रहे हो बेटा, मैं इतनी बार बोलती हूँ, गूगल है आपके पास, सर्च कर लो ना। अगर नहीं आता है आंसर, कुछ अपने आप से सर्च करके पढ़ के बताओगे तो वो चीज याद रह जाएगी आपको हमेशा के लिए, एंड यू विल बी गेटिंग सम न्यू फैक्ट्स जो आपने खुद सर्च आउट किए होंगे। फटाफट से किया करो। नहीं आता कोई बात नहीं, सीखने की कौन सी एज है, जब चाहेंगे तब सीखेंगे, है ना? तो डोंट गेट लाइक दिस कि नहीं अब नहीं आता है तो हम नहीं आंसर करेंगे, ऐसे नहीं किया करो। यस, एनीबडी हु कैन टेल मी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि हम ये जो बैंडविड्थ है इसको -3 dB डाउन करके ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्यों हम मैक्सिमम नहीं ले लेते? क्यों हम 5 या 4 dB पे नहीं ले लेते? व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? पता है किसी को? बिकॉज ओपी इज आउटपुट इज हाफ ऑफ इनपुट एट दिस पॉइंट। कैसे बेटा आउटपुट हाफ हो रहा है इनपुट का? 50% कैसे हो रहा है? बताओ रमन, एनीबडी एल्स? संचित, रितिका, सतविंदर, शिवम, कोई बच्चा? प्रताप? कोई नहीं बता पा रहा है कॉन्सेप्ट, या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ बीटेक में पढ़ा हुआ है? पढ़ा है ना सबने? पहले मुझे ये बताओ, ये आपने सबने कर्व पढ़ा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर, ये ड्रॉ भी किया होगा, है ना? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए तो जरूर से ड्रॉ किया होगा, हो सकता है आपने इसको लैब में भी परफॉर्म करके ड्रॉ किया हो। सेमी लॉक पेपर पे हम इसे ड्रॉ करते हैं, इफ यू रिमेम्बर। ईडीसी की लैब में किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की लैब में। तब ये ख्याल नहीं आया जब सर टीचर ने पढ़ाया कि ये 3 डेसिबल डाउन करो, लाइन खींचो और एफएल और एफएच पे मार्क लगाओ और ये हो गई आपकी बैंडविड्थ? तब किसी ने नहीं पूछा कि ये 3 ही डेसिबल पे क्यों? बिकॉज एट 3 डेसिबल कैरीज मैक्स स्ट्रेंथ एट इट। मैक्स स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ बच्चे यहाँ पे? ज्ञानेंद्र, क्या मीनिंग हुआ आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ से? सिग्नल स्ट्रेंथ मैक्सिमम। सिग्नल स्ट्रेंथ मैक्सिमम तो आपकी हाई पे होगी जहां पे गेन मैक्सिमम है। जब आप गेन को डाउन करोगे तो सिग्नल स्ट्रेंथ मैक्सिमम कैसे होगी? नहीं होगी बिल्कुल भी मैक्सिमम। चलो मैं बताती हूँ इसका रीजन, मुझे नहीं लगता कि आप लोग वहां तक पहुंच पा रहे हो। सी, इट हैज अ 2 रीजन। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लेना। पहला रीजन सुनो, व्हेन वी आर रिड्यूसिंग इट, जब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं मैक्सिमम से यहां तक, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो हमारा ह्यूमन ईयर है ये किस पे वर्क करता है? लॉग स्केल पे वर्क करता है। समझे? हमारा जो कान है ये लॉग स्केल पे वर्क करता है। अब ये कान वाली चीज कहाँ से आई? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स का है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हम क्या सुन सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते हैं। और जो हम सुन सकते हैं वो किस स्केल पे? वो लीनियर स्केल है, वो एक्सपोनेंशियल स्केल है, वो लॉगरिथमिक स्केल है। सो द ह्यूमन ईयर दे वर्क्स ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है? इसीलिए जब हम इसको प्लॉट करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप में से किसी ने इसको लैब में परफॉर्म करके प्लॉट किया होगा, ये कर्व प्लॉट होता है सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे, जहां पे आपका जो एफ है ये हो जाता है लॉग स्केल, ठीक है? और ये जो गेन है ये चलता है आपका लीनियर स्केल पे डेसिबल्स में। ठीक, अब इसका रीजन देखो क्या है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट
अब अगर हमारा ह्यूमन ईयर लॉग स्केल पे सुनता है, तो जब हम इसको मैक्सिमम से स्लोली डाउन करना शुरू करते हैं और हम इस पॉइंट पे आते हैं -3 dB, इस बीच में नो डिस्टरबेंस और चेंज इन वॉल्यूम और नॉइस, जो भी आप बोलो, इज डिटेक्टेड। किसने डिटेक्ट किया? ह्यूमन ईयर ने। कोई डिस्टरबेंस, कोई चेंज इन नॉइस, चेंज इन वॉल्यूम ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं करता अगर हम मैक्सिमम से स्लोली डाउन करते हैं अप टू 3 डेसिबल्स। और जैसे ही हम 3 डेसिबल से नीचे लाते हैं, डिटेक्शन स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी कैन थिंक ऑफ, अब हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, अब हमारा ह्यूमन ईयर समझ पा रहा है कि कुछ चेंजेस हो गए वॉल्यूम में या फिर नॉइस बढ़ गया। एक तो ये रीजन हुआ कि हमने 3 डेसिबल पे बार खींचा। दूसरा रीजन सुनो, जो ज्यादा टेक्निकल लगेगा आपको, ये तो एक कॉमन रीजन हो गया, ठीक है। एट -3 dB, जब हम -3 dB पे डाउन करते हैं, पावर जो है वो पावर बिकम्स हाफ। सिग्नल का जो पावर है वो हाफ हो जाता है। इसलिए हम इस बैंडविड्थ को क्या बोलते हैं? आपने रेयर कहीं पे कभी पढ़ा होगा, इसे हाफ पावर बैंडविड्थ भी बोला जाता है। दिस इज द बिग रीजन कि अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फ्लैट रीजन के और 2 पॉइंट्स रख के बैंडविड्थ ले लेंगे, तो क्या होगा? द सिस्टम फॉर विच वी टू बी डिजाइंड, उस सिस्टम का जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा अगर हम उस बैंडविड्थ पे उस सिस्टम को वर्क कराएंगे। लेकिन अगर हम 3 डेसिबल डाउन करके उस पर्टिकुलर सिस्टम को वर्क करवाते हैं, तो एक तो हमें वाइड बैंडविड्थ मिलता है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? द पावर कंजम्पशन गेट्स हाफ। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। तो अब ये भी अगर आप देखो, अब ये सारा मैंने क्यों बताया, द रीजन स्टार्टेड फ्रॉम दिस, कि जब हम मैक्सिमम गेन से 3 डेसिबल पे डाउन करते हैं, तो हमारा गेन कितना डाउन हुआ? मैक्सिमम का 0.707। तो अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालो तो कितना हुआ? 70.7%। तो ये भी वापस वही चीज आ गई कि अगर हमें पावर कंजम्पशन लो करना है, जो हमारा एक नीड है, यही तो नीड था ना अभी जब मैंने आपको मोटिवेशन ऑफ स्केलिंग समझाया था। एक तो हमें एरिया वो करना है, डेंसिटी बढ़ानी है, तो हम एरिया पे प्ले कर रहे हैं, तो वो हमने डायमेंशन से यहाँ से देख लिया, इस जगह से, ठीक है। दूसरा क्या था? पावर कंजम्पशन कम हो जानी चाहिए। पावर कंजम्पशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने इस कर्व का हेल्प लिया कि अगर हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं तो भी हमारा पावर कंजम्पशन कम हो रहा है। और इस स्केल पे डिजाइन करने का मतलब क्या है? हम कहाँ पे लैंड करें? 70.7% मीन्स अप्रोक्सीमेटली 70% रिडक्शन। तो ये दो रीजंस हैं बेटा स्केलिंग के, कि टेक्नोलॉजी नोड को हम क्यों बोलते हैं कि करंट से जब हम नए टेक्नोलॉजी नोड पे मूव करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी यूज अप्रोक्सीमेटली 70%। इज इट ओके टू एवरीवन? ये चीजें आपको समझ आई? ये किताबों में कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैंने आपसे बोला था इनको नोट डाउन करो पॉइंट वाइज। गॉट दिस थिंग एवरीवन? मैं सबसे पूछ रही हूँ बेटा, क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट नेम्स अ नंबर ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो। काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इस पे बनते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को कभी समझ ही नहीं पाते कि हमने स्केलिंग क्यों किया, और किया तो हमारे ये जो टेक्नोलॉजी नोट्स हैं, ये फिगर्स पर्टिकुलर कहाँ से आए और यही क्यों आए, ठीक है। सो नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ स्केलिंग। अब आपको मैंने ये समझा दिया कि स्केलिंग क्या है, करनी क्यों है, मोटिव क्या है, और टेक्नोलॉजी नोट्स का इंट्रोडक्शन, जो आते हैं नए टेक्नोलॉजी नोट्स, वो कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं। देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द एल एज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि एल को जो अभी तक हम जिसे चैनल लेंथ बोलते आ रहे थे, बेसिकली दैट इज in a very actual form, it is a minimum feature size which can be fabricated on chip. ठीक है? Is it clear to everyone now? Raise your hands.
ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़े टाइप्स ऑफ स्केलिंग पे। ओके, वेरी गुड। सो नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ स्केलिंग। पहले हम नया पेज लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आए यहाँ टाइप्स ऑफ स्केलिंग पे। दिख गया ये सबको? ओके, सो सी, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलिंग, ये स्केलिंग हम किसके कंसर्न में बात कर रहे हैं? दिस इज योर डिवाइस स्केलिंग। एंड व्हाट इज द डिवाइस वी आर स्टडीइंग? MOSFET. Okay, so there are firstly constant voltage scaling, then constant field scaling. Okay, these are the two prime. And third, which is now we are using in real scenario, that is known as a generalized scaling. ये हम in actual use करते हैं। फर्स्ट टू आपके अब नहीं यूज होते, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये वो हो गए। इसको हम CVS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे CFS कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फुल स्केलिंग, इसको फुल स्केलिंग भी कहते हैं। ठीक है, नाउ सी, इफ आई से कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, तो बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करना कि कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मींस जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। सी, इन ऑल द थ्री स्केलिंग टाइप्स एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? all dimensions must scaled down। ये कॉमन है, ये होता ही है, तीनों में होगा। ये कॉमन स्टेटमेंट है फॉर ऑल द थ्री। ठीक है, दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट। अब क्या क्या डायमेंशन हो गए? विड्थ ऑफ द चैनल, लेंथ हो गया, ऑक्साइड थिकनेस हो गई, देन जंक्शन डेप्थ हो गई। ये कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जो डायमेंशन से रिलेटेड हैं। अगर हम इसको देखो ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा एक मॉसफेट। जंक्शन डेप्थ हम किसको बोलते हैं? ये होता है हमारा जंक्शन डेप्थ, जिसको हम डिफ्यूजन डेप्थ भी बोलते हैं। ठीक है, टी ऑक्साइड आपको पता है, जो यहाँ पे आप ऑक्साइड लेयर ग्रो करोगे उसकी थिकनेस होती है। लेंथ और विड्थ आपको पता है, ये होगी लेंथ और विड्थ हो गई चैनल विड्थ और द गेट विड्थ। तो ये तो सभी में हो गए। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द वोल्टेज स्केलिंग, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, तो इट मींस आपका क्या स्केल डाउन नहीं हुआ? VDD, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और एनी वोल्टेज एक्सेप्ट दिस, ये स्केल डाउन नहीं होते हैं। देन वी टॉक ऑफ अ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वोल्टेजेस होंगे स्केल डाउन और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जर्नलाइज्ड स्केलिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जब ये दोनों पढ़ा देंगे फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होती है जर्नलाइज्ड स्केलिंग। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? इन पर्टिकुलर, इन ओरिजिनल वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ स्केलिंग। ये काफी सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा। दोज हु हैव गॉन थ्रू द VLSI सब्जेक्ट इन द BTech लेवल, दे मस्ट हैव सीन दिस थिंग। ओके, तो अब आपने ये चीज देख ली कि एक तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, जहां पे हम वोल्टेजेस लाइक सप्लाई वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इनको कांस्टेंट रखते हैं, हम इसे चेंज नहीं करते। ठीक है, दूसरा हो गया कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स कांस्टेंट। और कॉमन क्या है इन सारे स्केलिंग में? डायमेंशंस गेट स्केल्ड, डायमेंशन सभी में स्केल होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं स्केलिंग पैरामीटर और स्केलिंग फैक्टर। तो जो स्केलिंग फैक्टर है, हर एक ऑथर ने इसको अलग अलग नाम दिया है। मैंने इसको कैपिटल S से डिनोट किया। सम डिनोटेड बाय बीटा, कुछ अल्फा से डिनोट करते हैं, कुछ K से डिनोट करते हैं। आई एम डिनोटिंग इट बाय S।
नाउ सी दिस एस कैन बी यूज्ड इन टू वेज. अगर हम इसको ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो क्या होगा, इफ द W अर्लियर द विड्थ वाज W, तो नया विड्थ क्या हो जाएगा, W बाय S से स्केल डाउन होगा. क्यों? क्योंकि S का वैल्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1. इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो आप इसको डिवीजन में लेके जाएंगे. इफ S I choose it as less than 1 तो क्या होगा, इफ अर्लियर इट वाज W तो नया क्या हो जाएगा, W into S. क्योंकि अब ये S लेस देन 1 है तो जो न्यू वैल्यू है 1 से छोटे अगर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है इट विल बी रिड्यूस्ड. सो इट इज अप टू यू आप इसे कैसे लिखते हो. ठीक है, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ S ग्रेटर देन 1 तो आप डिवाइड में लगाएंगे स्केलिंग फैक्टर को. अगर आप S का वैल्यू 1 से लेस अज्यूम करते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई में लगाएंगे. ठीक, ज्यादा इजी होता है टू टेक एज ग्रेटर देन 1 कि हमने उसको डिवाइड कर दिया. दैट इज इजी टू डू. ओके, एंड दिस स्केलिंग फैक्टर बेसिकली टेल्स अबाउट द रिडक्शन इन द साइज कि कितना रिडक्शन होगा. एंड आई थिंक सो इसका वैल्यू 1.2 से 1.4 होता है कहीं इफ वी टेक एज ग्रेटर देन 1. तो अब आप इसको देखो समझो. सपोज अब मैं अगर डायमेंशंस की बात करूं, हमारे पास चैनल विड्थ है, लेंथ है, टी ऑक्साइड है और क्या था, एक्स जे. ये 4 मेन डायमेंशंस थे. ठीक है, तो अगर हम बात करें कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, इन दोनों की, तो एंड एस बी द स्केलिंग फैक्टर, ये हमारा स्केलिंग फैक्टर है. ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग द कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग W L टी ऑक्साइड एंड S, ये ऐसे दिखेंगे, स्केल डाउन हो जाएंगे बाय द फैक्टर S. सिमिलरली क्योंकि ये डायमेंशंस हैं दे विल आल्सो गेट स्केल डाउन इन द कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग. एज आई जस्ट टेल यू कि डायमेंशंस दोनों ही स्केलिंग में स्केल डाउन होते हैं. ठीक है, अब देखो अगर हमने यहाँ पे लिया सप्लाई वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग क्या कहता है, वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट. लेकिन कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में जब अप्लाई करेंगे ये डिवाइड बाय S होगा. सिमिलरली द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द मॉसफेट, ये यहीं पे रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट ये हो जाएगा VT upon S. So understood this thing, ये समझे आप लोग. यहां हमने क्या लिया, स्केलिंग फैक्टर S and this is greater than 1. ठीक है, is it clear to everyone how we are applying this constant voltage and constant field scaling? Yes or no? ओके, सो ये तो मैंने आपको कुछ बड़े ही प्राइमरी वाली चीजें बताई. अब जैसे कुछ डिराइव्ड होते हैं पैरामीटर्स, जैसे करंट इक्वेशन है. करंट इक्वेशन, करंट इज नॉट अ वन सिंगल पैरामीटर. करंट के साथ तो पूरा एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपके पास 6-7 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. तो वो हमें वहां पे हर एक पैरामीटर को प्लेस करके निकालना पड़ेगा. दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ पैरामीटर्स निकाल के बता देंगे. जैसे मैं आपको करंट है, ट्रांसकंडक्टेंस है, डोपिंग है, आई विल बी टेलिंग यू दोस्त कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. वी आर अप्लाइंग द कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग. ओके, टिल देन आई विल शो यू अ वन स्लाइड हियर. इसको हम ऑफ करते हैं. अब हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी जर्नलाइज्ड स्केलिंग की. तो कहाँ गया जर्नलाइज्ड स्केलिंग, सी हियर. सी, ये दिख रहा है ना सभी को. फुल स्केलिंग मींस कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, देन फिक्स्ड वोल्टेज स्केलिंग या कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, ये तो हो गया. अब तीसरा आता है जर्नल स्केलिंग और जर्नलाइज्ड स्केलिंग. इन द जर्नलाइज्ड स्केलिंग जो हम अब यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ अ स्केलिंग. अब इसमें क्या होता है, अभी आप फर्दर देखोगे जब हम फील्ड स्केलिंग को अप्लाई करेंगे फुल स्केलिंग को, तो कुछ पैरामीटर्स तो हमें बेनिफिट देंगे, कहीं पे हमारा लॉस हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली द कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, कुछ पैरामीटर्स तो अच्छे वर्क करेंगे,
अपग्रेड हो जाएंगे, कुछ हमारे डिग्रेड हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, वी वांट कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर्स अपग्रेड हो जाएं। तो जो डिजाइनर्स ने वे फाइंड आउट किया, दैट इज द जर्नल स्केलिंग। जर्नल स्केलिंग में देखो दो स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं। जो डायमेंशन है मॉसफेट के, वो स्केलिंग फैक्टर एस से स्केल डाउन होते हैं, ठीक है। और जो वोल्टेजेस हैं वो स्केलिंग फैक्टर यू से स्केल डाउन होते हैं। दोनों ही स्केलिंग फैक्टर्स ग्रेटर देन 1 है, बट यू का जो वैल्यू है वो एस से कम होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द जर्नलाइज्ड स्केलिंग इज, जहां स्केलिंग जो है वो कांस्टेंट स्केलिंग फैक्टर पे नहीं चल रही है। वी आर हैविंग अ टू स्केलिंग फैक्टर्स, और डायमेंशंस को हम थोड़े हायर स्केलिंग फैक्टर से स्केल डाउन करते हैं, और वोल्टेजेस को हम लोअर स्केलिंग फैक्टर से स्केल डाउन करते हैं। दैट इज व्हाट द जर्नलाइज्ड स्केलिंग इज। So is it clear to everyone? Got this concept? Yes or no? Raise your hands and tell me. Okay. So now this your time is also up. अब आप लोग बेटा जल्दी से आज का फीडबैक दीजिए लेक्चर का, and then you can leave the session and join the another.